Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना। नमस्कार। बाबा के दर्शन करने का आनंद निराला है, क्योंकि जब बाबा हमारी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, और न केवल बात कर रहे हैं बल्कि बाबा हमारे भीतर की चिंताओं को समूल नष्ट भी कर रहे हैं। हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम, अरुणाचल शिव ओम, त्रिशूलधारी शिव ओम, हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम। This joy of relating to the divine and also experiencing the joy which is pure in its nature because of the unpolluted flow of love that is showered by the gaze, the very gaze of Shirdi Sai Baba. And today we begin by catching up with the planets, the way planetary positions are. Many times we are told by astrologers and other learned beings that they do affect us based on what kind of Rashi we were born in, etc. But all Rashis are being influenced by the one and the only one which is sustaining the whole existence. And that was the kind of assurance which came to us from Sanskrit brothers at the beginning of this year while they were doing a Panchanga reading to mark the New Year celebrations as per Hindu calendar. ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉందని చెప్పి మీరు ఎవరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదంతా ఓవరాల్గా మీకు ఈ పంచాంగం యొక్క ఫలితాన్ని ఈ ఉగాది నాడు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అయ్యా నందన నందన అన్నారు, ఆనందం ఏముంది మరి ఇందుట్లో మరిగా అంత ఖర్చు అంటున్నాం కదా, అంటే ఖర్చు పెట్టినప్పుడే ఆనందం అంట. ఒకళ్ళకు మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆనందం వస్తుందట. మనం తిన్నదానికంటే ఒకళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి, ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ఆకలి విలువ తెలుస్తుందట. అందుకే వేదం ఏముంటుందంటే నకర్మ నాన ప్రజయాధనే నత్యాగే నైకే అమృతత్వమానశు, నకర్మణ అమృతత్వం ఆనశు, కర్మ ద్వారా అమృతత్వాన్ని పొందలేము. నా ప్రజయా, ప్రజల ద్వారా, ప్రజ అంటే ఏదో జనాలు కాదు, సంతానము ద్వారా, సంతానము ద్వారా ఆనందాన్ని పొందలేము. దేని ద్వారా పొందుతామండి అంటే త్యాగే నైకే, ఒక్క త్యాగము ద్వారా మాత్రమే ఆనందాన్ని పొందుతామంటుంది వేదం. కాబట్టి ఖర్చు పెడితే ఏందండి అంటే ఆనందం వస్తుందట. కాబట్టి ఆనందం అంటే ఎక్కడుంది? ఒకరికి ఇవ్వడంలో ఆనందం ఉంది. ఆ ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా బాబావారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో, రామచంద్రస్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణ ఆశీస్సులతోని అందరికి కూడా ఈ సంవత్సరం పరిపూర్ణంగా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధితోని, ధనధాన్యాభివృద్ధితోని, సస్యశ్యామలంగా ఆనందోత్సాహాలతో ఉంటారు అని చెప్పడానికి బాబావారు ఇక్కడ ప్రమాణం కూర్చున్నారు. ఆయన కార్మిక కలిసి కూర్చున్నాడు, ఆయన చూస్తున్నారు. ఏం పర్వాలేదు, ఎవరికైనా సరే ఏ రాశి అయినా అంత ఒకటే రాశి, బాబా రాశి అంతా కూడా మనందరి చేత. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః, గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం, లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు, సర్వే జనాः సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు, విశ్వకళ్యాణ సిద్ధిరస్తు. పార్వతీపతయే హర హర. जय बोलो शिरडी साईनाथ महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की,
जय बोलो सुब्रह्मण्य महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। We are getting prepared to celebrate Mother's Day, which is going to be observed on 13th May, and Guru is also like a mother. There is going to be a special talk by Dr. Bala Srinivasan at Shirdi Sai Temple on 13th May at 11 a.m. But now, as we proceed further in today's program, we also recollect Vishwayogi Vishwamji Maharaj, whose very presence, as he says, is Guru is more than mother, Guru is more than father, and all those wonderful words of assurance that comes from Vishwayogi Vishwamji Maharaj. While his birthday was observed, I was also present, and the camera also got to bring this gift of the devotional, soulful singing of Shobha Raj, singing this very mantra, Om Shri Sai Ram Gurudeva Datta. 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 Om Shri Sai Ram Gurudeva Datta.
fortunate in many ways. One being we are human beings. Two, we are also aware about the uplifting cultural flow that has originated from the divine land Bharat. And the divine language Sanskrit have had many illustrious poets, but one which is known as a very special one in Sanskrit literature is Kalidasa. And it was not just literature that was focus of this great creative giant. He was also someone who was very, very devotional. And Lagnashtakam, written by Kalidas, was recited by Sanskrit brothers to mark Sita Rama Kalyana Mahotsavam at Shirdi Sai Temple. We bring that uplifting joy which is radiated when somebody is reciting this Lagnashtakam with such soulfulness. आदावं भुजसंभवादि विनुतः शान्तोच्युतः शाश्वतः सम्भुल्लामलपुण्डरीकनयनः पुण्यः पुराणः पुमान् लोके यतः श्रुतिचोरसो मुरहरो मत्स्यावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीरामचन्द्र ध्यान सावधाना लिंदी कनकाम्बुजं कलशजः काशः कुशः कौस्तुभः कोशः कोकिलकूजितं कुवलयं कौमोदकी कुङ्कुमम् कौमारी कलहं सकूजितरवः कैलासशैलोद्भवः केयूरं कमलापतिः कलशजः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना गाण्डीवं गरुडध्वजो गणपतिर्गङ्गाधरो गौतमो गौरीशो गवयो गृहं गृहपति गोवर्धनो गोकुलम् गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपतिर्गोदावरी गोझरी गान्धारी गजगामिनी गजरिपुः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना चक्रधरश्चकोरमिथुनं चामीकरं चामरं चैत्रश्चैत्ररथं च चन्दनतरु चाम्पेयकं चन्दनं चण्डांशुश्च मरीमृगं विलसिता मणिश्चन्द्रिका चन्द्रश्चन्द्रमसोर्धमौलिमकुटः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते अवधाना शुभलग्ने सावधाना ओम डुण्डीशो नरशम्भुडोडुमरुगो शम्भोडिडी वल्लभो ढीलाजारुडजम्बुजाक्षिगः यस्मिन्नृकाण्डुनृगः डिम्भः कुम्भडि कुम्भकुम्भगहनो इंकारमोडिण्डिमो डोलाडुम्बुडुडुण्डुभाण्डुवलयः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्री सीतारामचन्द्र ध्यान सावधाना। आप कभी शिरडी गए हैं? आप कभी सोचते होंगे शिरडी जाने का, और आपने कई ऐसे भक्तों के अनुभव सुने होंगे जो शिरडी जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन हुए हैं। मेरा नाम अंजू जैन है। मैं अभी दिसंबर में जिस दिन दत्त जयंती थी, मैं शिरडी में ही थी शुक्रवार को। वो बाबा की एक लीला थी। हम फ्राइडे को जाने वाले थे और उन्होंने हमको रोक कर पहले त्र्यंबकेश्वर भेजा और उसके बाद उन्होंने हमें दत्त जयंती वाले दिन बुलाया, जो कि एक अपने आप में अद्भुत वो चीज़ थी। वहाँ हम गए, हमको 10 मिनट में बाबा के दर्शन हुए। 10 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहे, जबकि किसी को खड़े नहीं होने देते हैं।
वहाँ हम खड़े खड़े बस रोते ही रहे, क्योंकि इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि हमको कुछ और सुनना ही नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम लोग इस बार जब सोचा था कि हम वहाँ जाके गरीबों को खाना खिलाएंगे, जैसे ही हम बाहर निकले द्वारका माई से कि हमने देखा कि एक औरत आई कि बाई चाय और पाव खिला दीजिए। हमने कहा अरे एकदम हमको याद आया, हमने लोगों को सबको चाय पाव खिलाए। फिर एक आई कि कुत्ते को दूध पिला दीजिए, हमने उनको दूध भी पिला दिया। उसके बाद हम सबको खिला ही रहे थे कि एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा बेटा मुझे तो ये पकौड़े खाने हैं। मैंने कहा जो आपकी इच्छा है मैं वही खिलाऊंगी। जितने लोग थे उन सबको मैंने पकौड़ा, वो ठेले वाले का पूरे पकौड़े ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे बहुत भूख लगी अंजू, कुछ खाना है। तो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट ख़रीदे और मेरे को उन्होंने मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट मेरे हाथ में दिए। और जैसे ही मैं मुंह में डालने लगी कि मैंने देखा कि कोई एक बाबा है जिसकी आंखें इतना तेज़ था उनका कि वो सिर्फ मुझे देखते रहे और उन्होंने बस ऐसा हाथ किया। मैंने अपने आधे ड्राई फ्रूट उनको दे दिए और दूसरा हाथ से मैंने ऐसे करके और बस ऐसे कदम किया कि मुझे एकदम ध्यान आया कि ये साधारण आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जब मैं लोगों को दे रही थी तो वो बार बार मांग रहे थे कि एक हाथ पीछे कर रहे थे, एक हाथ आगे करके फिर मांग रहे थे। पर इस बाबा ने तो मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो बाबा नहीं थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, हम तीनों ने देखा और इतना अद्भुत चमत्कार कि देखते देखते 1 सेकंड में बाबा जो हैं ओझल हो गए। फिर हम लोग आगे गए जहाँ पे कि नीम का पेड़ है, वहाँ पर मेरी फ्रेंड गई और उसने कहा कि मुझे ये नीम की पत्ती चाहिए, तो वो ऐसे करके निकालने लगी उसमें से। तो एक वहाँ बाबा आया और उसने कहा कि पुजारी जी कहें या जो भी कुछ कहें, बोले कि ये मुझे नीम का पत्ती चाहिए। बोले बेटा ये तो मैं नहीं दे सकता, पर तुम्हें मैं नारियल देता हूँ। और मेरी फ्रेंड बोल रही कि वहाँ बहुत सारे नारियल रखे थे। बोले तुम जितनी बार पत्ती मांगोगी उतनी बार मैं तुम्हें नारियल दूंगा। तो उसने वो नारियल लेके आ गई और क्योंकि हम लोग चप्पल के पास खड़े थे, हम 1 ही सेकंड बाद वापस गए। ना वहाँ कोई नारियल था, ना वहाँ कोई बाबा थे, ना कोई कुछ था। तो ये बहुत बड़ा बाबा का चमत्कार था और ये बिल्कुल सत्य है कि यदि जिस भक्ति से हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा हमें उस रूप में ज़रूर दिखाई देते हैं। और मैं उस चीज़ से बहुत धन्य हूँ कि बाबा ने मुझे चमत्कार दिया। जय साईं राम, जय साईं राम। और अब समय है श्री साई चरित्र पारायण को आगे बढ़ाने का। आज हम बढ़ रहे हैं अध्याय 10 की तरफ। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। ग्रंथ सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। साईनाथ अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम श्री साईराम गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री साई चरित्र अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, नानावली, सुगम पथ। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण में तत्पर और आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में ये अति श्रेष्ठ और सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं।
पिछले अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव और अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब सुने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र बिस्तर। पहले हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के लिए लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से, मस्जिद की बल्ली से उसे झूले की तरह बांध कर उस पर सोना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियां तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थीं, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार भी हो, ये तो राम ही जाने, परंतु ये तो बाबा की एक लीला थी जो फटी चिंदियां तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि किस प्रकार बाबा तख्ते पर चढ़ते होंगे, किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। उत्सुकतावश लोग इस रहस्य के उद्घाटन के लिए दृष्टि लगाए रखते थे, परंतु ये समझने में कोई सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। हालांकि बाबा को अष्टसिद्धियां प्राप्त थीं, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। वो तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाहरी दृष्टि से साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे भीतर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगा लेते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे, कभी यात्रा को नहीं निकलते। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वो सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति को कभी चिंता नहीं की और सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह किया। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित, अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। ये अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता और उनकी जन्मतिथि का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्मतिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608 से 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि
राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है एक ही हैं, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ हैं, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्रीहरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है। इसके कथन अनुसार आचरण करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। And now time for Sai quiz. In the last episode we asked what was the scripture that Baba took from Ramdasi and gave to Shama, and some of you gave us the correct reply, some of you couldn't get the correct one which is Vishnu Sahasranam. पर आगे बढ़ने से पहले आप में से वो सब जिन्होंने सही सही जवाब भेजा है उनके नाम हैं सीमा पोद्दार, पंकज दोषी, वेदादी कोटेश्वरा राव, स्मिता पारिक और अरुण सप्रा। आप सभी को बधाइयां और धन्यवाद के साथ हम बढ़ते हैं आज के साई क्विज नंबर 4 के प्रश्न की तरफ। आज का सवाल सरल है, सीधा है। सवाल है, बाबा किस पेड़ के नीचे बैठा करते थे? नेम द ट्री अंडर विच शिरडी बाबा यूज्ड टू सिट। और आप जवाब भेज सकते हैं shirdisaibs@gmail.com पर, और आप में से वो जो भेजना चाहते हैं टेक्स्ट यूज कर सकते हैं मेरा सेल फोन नंबर 9175737775। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका आभार। साई राम। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। चल मन